So we're discussing the AVL tree, and these are some of the concepts. Like AVL tree is a height balanced binary search tree. Okay, means all the operation will be like the according to the concepts of the binary search tree. Okay, but there is another factor, that is the height balancing. Okay, so we can say like these are the self balancing trees. जैसे इसमें unbalancing होगी, so they will balance accordingly. So there is a term that is known as the balance factor. It is related to every node in the tree, and the formula for calculating the balance factor is the height of the left subtree minus height of the right subtree. Okay, and for AVL tree, the balance factor of every node must be in this particular range, and if that balance factor in this range, then we can say like the tree is height balanced. Okay, and a node with balance factor other than these values means below -1 or above 1, then the tree can be considered as the unbalanced at that particular node. Okay, so if the balance factor of a node is 1, then it means that the left subtree of the tree is one level higher than that the right subtree, then it is known as the left heavy tree. Okay, and if the balance factor of a node is 0, it means it is perfectly balanced. Okay, and if the balance factor node is -1, then it means that the left subtree of the tree is one level lower than the right subtree, then that is known as the right heavy tree. Okay, so this is an AVL tree basically, and wait a minute. And these are the different balance factors of each tree. So if you want to find out the balance factor, so balance factor of every node will be 0 because there is no left subtree and right subtree. Okay, ये परफेक्टली बैलेंस हो गया, लेफ्ट सब ट्री 1, राइट सब ट्री 1, तो बैलेंस फैक्टर 0. इसका बैलेंस फैक्टर दैट इज 1 2. यू कैन काउंट नंबर ऑफ एजेस. ओके, इन द लॉन्ग ब्रांच, and 1 2 or here 1, so 2 minus 1 1. Balance factor of this 1 2 3 and 1 2 3 4. It is 3 minus 4 minus 1. ठीक है, और ये AVL ट्री है क्या? एक तो बैलेंस है, एंड सेकेंड वन थिंग इज it should be a binary search tree. So yes, every node's value is greater than to its left side and less than with its right side. Okay, now these are the rotations. The rotations are nothing but the transformation or reconstruction procedure. So we will perform the rotation operation when the balance factor of any node will not be in that particular range. Okay, so the rotations are classified in two categories, single rotation and double rotation. The single rotation is Al rotation, means new node is in the left subtree of the left subtree of A. A क्या है, where the balance factor is in this particular range, और वो जो range है उसके बाहर है. ठीक है, so new node is in the left subtree of the left subtree of A, then that is Al rotation. और ठीक इसका mirror image जाएगा R rotation, means new node is in the right subtree of the right subtree of A. Okay, in the double rotation, first one is the Al R, तो इसको ऐसे समझ लो, लेफ्ट का राइट मीन्स इट इज लाइक दिस. तो ये नोड यहाँ ऐड हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे अनबैलेंस हुआ, तो इट दिस इज द राइट सब ट्री ऑफ दिस लेफ्ट सब ट्री ऑफ दिस. ओके, और ये RL हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया, मीन्स इट इज लाइक दिस. मीन्स ये नोड इंसर्ट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे अनबैलेंस हो रहा है, तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है इसके राइट के लेफ्ट में. ठीक है, so LR rotation is new node is in the right subtree of the left subtree of A. ठीक है, and RL rotation is new node is in the left subtree of the right subtree of A. ठीक है, so these are the four categories, the four type of rotation: single rotation and double rotation. Now let's understand this LL rotation. So okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने नया नोड ऐड किया, तो ये ट्री की जो हाइट है इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे इंक्रीज हो गई, इस वजह से यहाँ रूट पे ये अनबैलेंस हो गया. अगर अनबैलेंस होता है तो ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, इट इज इन द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, तो दैट विल बी LL रोटेशन. ओके, तो बी को हम रोटेट करेंगे, मीन्स वी विल परफॉर्म द राइट रोटेशन ऑन दिस बी. ठीक है, सो विल रोटेट ट्री इन दिस डायरेक्शन, सो ए विल बिकम द रूट नोड, दिस विल बी इन लेफ्ट, ये लेफ्ट में रहेगा, ये ए के राइट में है, ये बी के राइट में है, और ये वाला जो है ये बी के लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है, ओके.
So this is the parallel rotation, और यह better way में clear हो जाएगा. Now we suppose we are having this situation 15, 12. We have added this 10. So tree unbalance at this particular node, और किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से. It is in the left of left. ठीक है. So क्या करेंगे? Right rotation करेंगे. Right side में rotation करेंगे. ठीक है. So 12 will be in the middle, 10 will be in left, 15 will be in the right. Now the RR rotation, that is the totally mirror image of the LL rotation. So it is the RR rotation. Node is inserted here, and because of this, tree is unbalanced at this particular node, and this node is in the right subtree of right child, that is the RR. ठीक है. ये कहाँ पे आ रहा है? इसके right child के right में. Then that will be RR. तो क्या करेंगे? ट्री को हम लेफ्ट रोटेट कर देंगे. लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा? दिस विल बिकम द रूट. ये इसके लेफ्ट में, ये इसके लेफ्ट में, एज इट इज. ठीक है. ये इसके राइट में है ही. देन इट विल बी इन द ए इज राइट हियर. दिस इज द RR रोटेशन. तो मैंने कल ये कुछ एग्जांपल लिए थे सेपरेटली. लाइक दिस विल बी द सिनेरियो 20, 30. वी आर इंसर्टिंग 50 हियर. 50 will be here. So tree will be unbalanced at 20 because of 50. 50 is in the right of 20, right of 30, and which is in the right of 20, that is RR. So we'll left rotate the tree at 2, so it will be 30. This will become the root node, and 20 left, 50 right. Okay. Okay. Now the LR rotation. अच्छा, this is a special case. और जैसे RL है और LR है, ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, लाइक जो भी नया नोड इंसर्ट हुआ है, दैट इज इन द राइट ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड. जहाँ पे ट्री अनबैलेंस हो रहा है, ये पूरा सिनेरियो है. ट्री अनबैलेंस हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो जो नया नोड इंसर्ट हुआ है, या नया यहाँ पे हाइट इंक्रीज हुई है, वो कहाँ पर इंक्रीज हुई है? यहाँ पर इंक्रीज हुई है. ठीक है. ये कहाँ पे आ रहा है इसके? ये आ रहा है इसके लेफ्ट के राइट में. वी कैन रीड इट लाइक लेफ्ट का राइट. ठीक है. और राइट चाइल्ड ऑफ लेफ्ट सब ट्री. ओके. अच्छा, अब इसमें डबल रोटेशन होगा. तो इसमें पहला रोटेशन कौन सा होगा? और थोड़ा सा इसको बेटर वे में समझ लो कि कंफ्यूजन नहीं हो किसी तरह का. इसी सीक्वेंस को देख लो यहाँ पे. पहले तो हम करेंगे उसको लेफ्ट रोटेट, फिर करेंगे राइट रोटेट. ठीक है. और जो RL होता है उसमें करेंगे पहले राइट रोटेट, देन लेफ्ट रोटेट. ठीक है. ये ओनली ट्रिक है इसको समझने के लिए. प्रोसीजर यहाँ पर है पूरा. लाइक यहाँ अनबैलेंस हुआ, इसकी वजह से हुआ. ये जिगजैग फॉर्म में यहाँ पे इंसर्शन हुआ है. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल रोटेट इट लाइक दिस. तो जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे, देन B विल बी द रूट नोड. A इसके लेफ्ट में आ जाएगा, और ये पूरा एज इट इज रहेगा. ठीक है. और ये वाला चाइल्ड कहाँ आ जाएगा? A के राइट में आ जाएगा. क्लियर हो गया? ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? ये जो सिनेरियो होगा, इट विल बी लाइक दिस. मीन्स ये हो जाएगा इससे कनेक्ट यहाँ पे. ठीक है. ये वाली एज हट जाएगी. ओके. एंड दिस विल बी इन द राइट ऑफ A. ठीक. इंटरमीडिएट स्टेप इसका 1 मिनट आगे शो कर रखा होगा. हाँ, हियर. तो पहले तो इसको ऐसे लेफ्ट रोटेट किया. B विल कम हियर, A इन द लेफ्ट, और ये A के राइट में आ गया T2, और ये T3 यहीं पे रहा. अब इसको करेंगे राइट रोटेट. ओके. तो पहला था लेफ्ट रोटेट, फिर दूसरा था राइट रोटेट. राइट रोटेशन में B विल बी द रूट. ये बिल्कुल सीधे राइट साइड में आ जाएगा, और T3 C के लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है. दिस इज द LR रोटेशन. और जो RL रोटेशन है, दैट इज टोटली द मिरर इमेज ऑफ दिस LR रोटेशन. ओके. So this is the LR rotation. We are having this form like 10 and 5. Okay, we are inserting here 7, so it will come in the right of 5. Now tree is unbalanced at 10 because of this 7, and 7 is the right child of its left subtree. So it is LR rotation. In the LR rotation, we will perform 2 rotations. First one is the left rotation, second one is the right rotation. So first left rotation, then 7 will become here and 5 will come here like this. And second is the right rotation. Okay. So 7 will be the root, 10 right में, 5 left. Clear? Now the last one RL rotation. तो जो भी LR था, ठीक उसका अपोजिट हो गया. यहाँ पे इंसर्शन हुआ है, ट्री अनबैलेंस्ड हुआ है यहाँ रूट पे. ये कहाँ पे आ रहा है? इट इज इन द लेफ्ट ऑफ राइट चाइल्ड. राइट चाइल्ड के लेफ्ट में, राइट चाइल्ड के लेफ्ट में. ठीक है. ओके. सो फर्स्ट वी विल डू राइट रोटेशन. इसका इंटरमीडिएट इमेज शायद नहीं है स्लाइड मेरे पास. ठीक है. इसको हम ऐसे समझ लेते हैं. मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ. इंटरमीडिएट स्टेप जो होगा इसका, इट विल बी ए.
तो यहाँ पर है ही, इसके लेफ्ट में है T1, ठीक है। इसके राइट में हो जाएगा B के राइट में हो जाएगा C के राइट में है T4, B के लेफ्ट में है T2 और T3 कहाँ आ जाएगा, T3 यहाँ आ जाएगा। आप क्या करेंगे, विल परफॉर्म हियर लेफ्ट रोटेशन। तो पहले तो हमने किया राइट रोटेशन, फिर करेंगे लेफ्ट रोटेशन करने के बाद क्या होगा, हमको ये मिल जाएगा, मीन्स B विल बी द रूट नोड, A इन लेफ्ट, T1 इन लेफ्ट, T2 A के राइट में आ गया, और ये एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। So let's suppose we are having a tree like this, 50, and we are having here 60, ठीक है। बैलेंस फैक्टर इसका -1, इसका 0। लेट्स सपोज वी आर इंसर्टिंग हियर 55, ओके। मेरे को क्या यहाँ पे नोट लेके आना था, 55, ठीक है। सो बैलेंस फैक्टर 0, इट इज़ 1 एंड इट इज़ -2। अनबैलेंस हुआ यहाँ बिकॉज ऑफ दिस, ये आ रहा है इसके राइट साइड के लेफ्ट में, दैट इज L रोटेशन। तो क्या करेंगे इसमें हम, फर्स्ट रोटेशन तो ऐसे होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, 50, 60 और सॉरी 55 एंड हियर 60, ठीक है। सेकेंड रोटेशन होगा इस तरीके से, तो इट विल बी 55 and 50 and 60. Now balance factor 0, 0 and 0. Clear? Okay. Should I take some more examples here? एक मिनट। Now we are inserting 29. तो 29 कहाँ पे आएगा, देखो इसमें 10 के राइट, 40 का लेफ्ट, 30 का लेफ्ट, 20 का राइट और 25 का लेफ्ट, यहाँ पे आना चाहिए। सॉरी 25 के राइट में 29, तो इट विल बी हियर। और जब ये यहाँ पे आएगा तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा, एक मिनट। what are the new balance factor of 20, 25 and 29? तो इसका तो 0 है, इसका -1 है, इसका -2 है, ओके। इसका भी और औरों का भी चेंज हो रहा है, 1 2 3, 3 -1 दैट विल बी 2, इनका भी मॉडिफाई होगा, इट विल बी 2, ओके। एंड इसका मॉडिफाई होगा 1 2 3 4 1 2 दैट विल बी 2, ओके। इसका बाकी ये रहेगा, अच्छा 1 2 3 और 1 2 3 4 5, 3 -5 -2, सबका ही मॉडिफाई हो गया यहाँ पर, ओके। तो ट्री इज अनबैलेंस्ड हियर किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्या कौन सा रोटेशन, आर रोटेशन। आर रोटेशन में क्या होगा, लेफ्ट रोटेट कर देंगे इसको, 25 विल कम हियर, 20 लेफ्ट में, 29 राइट में, ठीक है। So unbalance at these nodes, what type of imbalance are, then left circular 30 look like after RR rotation, it will look like this, ये इस तरह से हो जाएगा। अब बैलेंस फैक्टर देखें तो 0 0 0, it will be 1 2 1, इसका हो जाएगा 1 2 3 -2 1, हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 -1, ठीक है। 60 इंसर्ट होने से क्या होगा, बैलेंस फैक्टर चेंज होगा, इसका 0 1 0 1 2 2 minus it will be 1 1 2 3 3 -1 it will be 2 और ये 0। तो अनबैलेंस हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से हो रहा है, विच रोटेशन, इट इज एल रोटेशन बेसिकली। देखो क्लास, इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अनबैलेंस कहाँ हो रहा है, इधर हो रहा है 290 पे, ओके। और किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ 60 कहाँ पे आ रहा है, इसके लेफ्ट में आ रहा है। जिगजैग फॉर्म बन रही है कि यहाँ पे नहीं, एक लीनियर फॉर्म में आ रहा है, लेफ्ट का लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है, तो एल रोटेशन होगा इसमें, एल, ठीक है। सो 80 विल बी द रूट हियर, इसके राइट में 90, इसके राइट में 100, और ये यहाँ पे आ जाएगा 85, और यहाँ पे आ जाएगा 70, और 70 के लेफ्ट में 60। बैलेंस फैक्टर 0 1 0 0 0 1 2 0, क्लियर। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा वाला मैं बताता हूँ। सपोज अनदर केस लाइक दिस, वी आर हैविंग हियर 100, इधर हो गया 90, इसके राइट में हमने लिया सपोज
110, इसके राइट में लिया यहाँ पे 120, एक नोड यहाँ पे लिया, दैट इज सपोज 105, ठीक है। अच्छा, एक नोड यहाँ इंसर्ट किया हमने, सपोज द नोड्स वैल्यू इज 130, it is the inserted node. Okay, now balance factor 0, it is 0, -1, 0, इसका हो गया 1 -2, -1, 1 -3, -2. Unbalanced हुआ 100 पे because of 130, which type of rotation? RR. Okay, so it is in right of the right subtree, so it will be RR rotation here, we will write the RR rotation, ठीक है। Okay, so क्या होगा इसमें, 110 will be the root 100, 90, okay, in the right it will be 120, अच्छा 105 यहाँ पे आ जाएगा, इधर 105 और 120 के राइट में 130, क्लियर। ओके, एनी डाउट है? नहीं, इसको भी सेव कर लेते हैं पहले। ओके, नाउ आई नीड टू इंसर्ट 2 more slide, duplicate here and duplicate here. Okay, so remove this one, this one. अब हम ले लेते हैं इसमें some more examples like of LR और RL rotation, ठीक है। So suppose the scenario is like this. It is suppose 100 on the left, 90 here, 80, यहाँ पे एक नोड ले लिया हमने 110, यहाँ पे आ गया सपोज 95। अच्छा, अब जो नया नोड इंसर्ट हुआ है, सपोज दैट नोड इज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, सपोज दैट नोड इज 93, दिस इज द न्यू नोड, ठीक है, इंसर्टेड न्यू नोड। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू नोड, समझ लेना इसका मतलब क्या है, इट इज न्यू नोड। ओके, सो बैलेंस फैक्टर इसका तो हुआ 0, इसका हुआ 1, इसका हुआ 0, इसका 1 -2, दैट इज -1, और 3 -1, दैट इज 2, और इसका 0। ओके, सो 3 and 3 अनबैलेंस्ड एट 100, किसकी वजह से हुआ, 93 की वजह से। कौन सा रोटेशन? नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मैं बताता हूँ, दो टर्म हमारे पास है, एल आर और आर एल, ठीक है। इनको रीड कैसे करना है, मैं भी कल कंफ्यूज हो गया था इसमें। जो नया नोड है ना, वो आएगा लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में। ये किससे रिलेटेड है, जहां अनबैलेंस हो रहा है, तो लेफ्ट के राइट में, तो ये तो लेफ्ट का राइट और ये राइट का लेफ्ट, मीन्स राइट के लेफ्ट में, ठीक है। तो इससे समझ लो इसको, ये एल पहले आ रहा है, इट मीन्स लेफ्ट की बात हो रही है, आर पहले आ रहा है, इट मीन्स राइट की बात हो रही है। राइट की मीन्स राइट चाइल्ड का लेफ्ट। नया नोड जो इंसर्ट हुआ है वो तो ये वाला है, ये वाला, और ये किसके किधर है, ये लेफ्ट चाइल्ड के राइट के अंदर है, ठीक है। तो दिस इज एलआर रोटेशन बेसिकली, अनबैलेंस एट 100 बिकॉज ऑफ 93, इट इज इन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ऐसे समझ लो इसको, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, ठीक है, जिगजैग फॉर्म में है जो। ओके, सो ये लेफ्ट राइट यहाँ पे आ गया, तो डबल रोटेशन होगा इसमें, ठीक है। तो इट इज बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ आर एल रोटेशन, सॉरी एल आर रोटेशन। तो पहले तो इसको हम करेंगे लेफ्ट रोटेट, फिर करेंगे राइट रोटेट। जब लेफ्ट रोटेशन अप्लाई करते हैं तो हमको क्या चीज मेंटेन रखनी होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द बीएसटी, बाइनरी सर्च ट्री। तो किस तरह से रोटेट करना चाहिए इसको, तो ध्यान रखना दिस 90, अच्छा ये इस फॉर्म में, इस पर फोकस करो, इतने इतने पोर्शन पे। तो इसमें रूट कौन सा बनना चाहिए, 90 विल बी देयर, रोटेट करेंगे तो 95 विल बी द रूट, 90 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, 80 उसके भी लेफ्ट में आ जाएगा, 93 आ जाएगा। सो फर्स्ट रोटेशन तो होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है।
तो हमारे पास हमारा जो ट्री बन जाएगा दैट विल बी 100, 95, 90, 80, 93 कहाँ आएगा, विल कम हियर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 110। दूसरा होगा राइट रोटेशन इस डायरेक्शन में। इसमें डिले आता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत है। ओके, नाउ 95 विल बी द रूट हियर। 95 यहाँ पे आ जाएगा। 95 के राइट में क्या आएगा, 100, 100 के राइट में क्या आएगा, 110। क्लियर। इसके लेफ्ट में क्या आएगा, 90, 90 के लेफ्ट में क्या आएगा, 80, और यहाँ पे क्या आएगा, ओह सॉरी, इट इज़ 95। ठीक है। अब बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो 0, 0, 0 एंड इट विल बी 0 or it will be -1 or 0. Any doubt to anybody here? Just you need to identify like which type of rotation we need to apply there, like which type of imbalancing is there, LL, RR, LR और RL। ठीक है, मैं इनमें भी मेंशन कर देता हूँ इसको। अच्छा, मैंने इसमें लिख दिया, एक ये करना पड़ेगा चेंज, I need to keep here। तो इट इज़, हाँ ये मैंने मेंशन कर भी दिया यहाँ पे, इट इज़ RR। एक स्लाइड गायब हो गई क्या हमारी, हाँ ये इट इज एल एल रोटेशन। ठीक है, एल एल। तो ये कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं इनके। इट इज आर आर रोटेशन, इट इज एल आर रोटेशन, और नाउ आर एल रोटेशन। तो सपोज हमारे पास स्लाइड्स नोट हैं 90, 70, 100, 110। यहाँ पे ले लेते हैं हम 95, और एक और नोड इंसर्ट किया है यहाँ पे हमने। अब थोड़ा सा इसको, और वहाँ मैंने कॉम्प्लिकेटेड किया था। ठीक है, एज इट इज़ वैसा नहीं ले रहा मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ 93। तो अगर मैं देखो यहाँ पे चाइल्ड लेता हूँ एक, तो जब इसको रोटेट करते हैं 95 के राइट में लेता हूँ, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, वो 100 के लेफ्ट में आ जाएगा। और अभी नहीं है, कुछ राइट में है ही नहीं, जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो क्या होगा, 95 रूट हो जाएगा, ये लाइन में आ जाएंगे, 93 इधर ही रहेगा। अच्छा, ये हमारा न्यू नोड इंसर्ट किया हमने यहाँ पे, इट इज़ न्यू नोड, बैलेंस फैक्टर 0, 1, 1, 0, 0 एंड इट इज -2। तो अनबैलेंस हुआ, इट इज रोटेशन आर एल, इसको समझ लो। ठीक है, इट इज राइट लेफ्ट की जिगजैग फॉर्म कैसे हो रही है, राइट लेफ्ट। यहाँ अनबैलेंस हो रहा है राइट लेफ्ट। ठीक है, अगर इसको रीड करें स्टार्टिंग से, आर एल राइट लेफ्ट मीन्स राइट का लेफ्ट। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट रोटेशन विल बी दिस रोटेशन। यहाँ भी कंफ्यूजन आए तो इसी को रीड करना है, पहला रोटेशन राइट होगा, दूसरा रोटेशन लेफ्ट होगा। तो पहले राइट रोटेट करेंगे इसको। सो वी विल हैव लाइक दिस 90, 70, इट विल बी 95, 93, 100, 110। नाउ सेकेंड रोटेशन विल बी राइट रोटेशन, और यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा वो। ठीक है, सो 95 रूट 90 here, सॉरी, हाँ 90 here, then 70। अच्छा, इसके राइट में 100, ये 93 कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और 100 के राइट में क्या हो जाएगा, 110। नाउ द बैलेंस फैक्टर 0, 0, 0, -1, 0 एंड इट विल बी 1। ठीक है, तो ये चार जितने भी केसेस पॉसिबल थे मैंने सारे ड्रॉ कर दिए। ठीक, नाउ यू पीपल नीड टू डू सम प्रैक्टिस ऑन दीज क्वेश्चन। तो 14, 17, अच्छा हर बार क्या होना होता है कि बैलेंस फैक्टर भी ड्रॉ करना होता है। ये मैंने कुछ स्लाइड
पहले से थी पर, अच्छा अभी मुझे ये देखना पड़ेगा, यहाँ है इसमें, इसके बाद ये मॉडिफाई हो रहा है। तो इसमें मैं बैलेंस फैक्टर मेंशन नहीं कर सकता बेसिकली, मेंशन करूंगा तो ये क्या है, एक एक स्लाइड में एनिमेशन की फॉर्म में आ रहे हैं। 14 हुआ, अच्छा वैसे देख लेते हैं, इसका बैलेंस फैक्टर -1, इसका 0 और इसका 0, सॉरी इसका 1, इसका 0 0, ठीक है। एक और नोड आता है, अब भी बैलेंस्ड है, 0 1 -1 0 और 0। अब अनबैलेंस हो गया, यहाँ पे हो गया, किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो एल एल रोटेशन, इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे, 7 रूट बन जाएगा, ये राइट ये लेफ्ट, ठीक है। यहाँ अनबैलेंस हुआ, ये रोटेट करके बैलेंस किया, ठीक है। नेक्स्ट 13, अब देखो अनबैलेंस हो रहा है क्या, 0 हो गया, -1 और 1 -2, -1 1 2 3 3 -2, नहीं अब भी नहीं हो रहा अनबैलेंस। 12, अब अनबैलेंस हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, बैलेंस फैक्टर इसका तो हो गया 0, में रिमूव कर दूंगा, 0, इसका हुआ 1, इसका हुआ -2, इसका हुआ -2, इसका हुआ 0 1 2 3 4 4 -2 2 -1 0। कहाँ अनबैलेंस हो रहा है, यहाँ पे 11 पे 7 14, नियरेस्ट वन विच इज नियरेस्ट वन 11, पहले इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा अब 11 पे अनबैलेंस हुआ ड्यू टू 12, कौन सा रोटेशन, हाँ गलती गलती, एल आर नहीं है बच्चे, ये 11 पे चेक करो, आर एल होगा यहाँ पे। 12 इज इन, देखो 12 मैंने तुम लोगों ने इसको रीड करना बताया था, आर एल आर आर एल, इसको सिक्वेंशियल वे में रीड करो। ये लेफ्ट का राइट हो गया, ये राइट का लेफ्ट हो गया, या इस तरह से देखो इसको, और ऐसे रीड करते हैं, एक मिनट, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे, अच्छा 12 इंसर्ट हुआ, 12 की वजह से अनबैलेंस हो रहा है, ये 11 पे 7 पे 14 पे, ये तो क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम नियरेस्ट जहाँ अनबैलेंस हो रहा है ना उसको बैलेंस करेंगे, नियरेस्ट कौन सा है, 11, ये क्लियर हो गया। आप 14 पे नहीं देखोगे, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले नियरेस्ट को बैलेंस करेंगे, उसके बाद भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, तब आप चेक करोगे कि क्या सिनेरियो है, वैसे ऐसा होगा नहीं, एक बार में पूरा ट्री बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करेंगे 11 पे, तो 11 के अकॉर्डिंग ये आ रहा है आर एल, देखो इस तरह रीड करो, इट इज आर एल, आर एल, क्लियर, ओके। सो इट इज आर एल रोटेशन, तो पहला रोटेशन तो इसमें होगा राइट रोटेशन, मीन्स ये इस तरह से होगा, इस वक्त इसी को देखें अगर हम, तो ये हो जाएगा 11 12 और 13, और फिर करेंगे ये रोटेशन, तो 12 विल बी द रूट देयर, ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, देखो 11 12 13 और 12 विल बी द रूट हियर, नाउ द ट्री इज बैलेंस, क्लियर। इंसर्ट 8, 8 यहाँ पे किया, अब जरा देखो बैलेंस फैक्टर 0 हुआ, 1 हुआ, 1 1 2 -1 दैट इज 1, इट विल बी 0, और इसका हो गया 0 1 2 3 1 -3 -2, और ये हो गया 1 2 3 4 4 -2 2, इट इज -1, इट इज 0। तो नियरेस्ट कहाँ अनबैलेंस हुआ, 7 पे, और 8 का क्या रिलेशन है 7 से, आर एल, राइट के लेफ्ट में आ रहा है ये आर एल, ठीक है। तो डबल रोटेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, डबल रोटेशन में पहला रोटेशन तो ये वाला होगा, अब इस पर फोकस कर सकते हैं हम केवल, जहाँ जिसको बैलेंस कर रहे हो ना उस पर फोकस करो, पूरा ट्री मत देखो। इसको बैलेंस करेंगे, सो 11 यहाँ आ जाएगा, 12 इसके राइट में, 13 उसके भी राइट में, जो मैंने कुछ स्पेशल एग्जांपल बताए थे आपको, इस तरह से देखो क्या हुआ, ये 11 आ गया यहाँ पे। नाउ अब करेंगे इसको लेफ्ट रोटेट, 11 पहुंच जाएगा 7 की जगह, 7 इधर 4 और इधर, ठीक है, गॉट इट। सो नाउ द ट्री इज बैलेंस। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लेना। एवियल ट्री विद द फॉलोइंग वैल्यूज, इनका शायद इसमें ट्री बना के दिखा रखा है, देखो 15 20 24 कौन सा रोटेशन, आर आर रोटेशन, इसको बैलेंस कर दिया। अब कौन सा रोटेशन,
देखो 0 -1 और 2 यहाँ अनबैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से? कौन सा होगा? वेरी गुड, लेफ्ट राइट एल आर रोटेशन। एल आर में पहले इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, 13 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसको राइट रोटेट करेंगे, 13 रूट पे आ जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज 7 इंसर्ट किया, अनबैलेंस कहाँ हो रहा है अभी इसमें? 0 1 और 1 0 1 2 3 3 -1 2, इट इज 0। अनबैलेंस एट हियर, किसकी वजह से? इसके एक लीनियर वे में आ रहा है, एल एल, 13 विल बी रूट हियर। क्लियर? नाउ 30 यहाँ ऐड किया, 36 ऐड किया, तो बैलेंस फैक्टर 0 1, अच्छा 1 2 1 2 3 4, इट विल बी -2, it will be 0 1 2 3 -2 -2 -1 0। तो नियरेस्ट कहाँ पे हो रहा है? 24 पे। सो जस्ट फोकस ऑन दिस। कौन सा रोटेशन? आर आर रोटेशन। वेरी गुड। सो आर आर रोटेशन। अब थ्री बैलेंस हो गया है, ठीक है। बैलेंस फैक्टर देख सकते हैं हम, देख लेना आप लोग, ठीक है। नाउ इंसर्ट 25, ये थोड़ा सा देखते हैं इसको। बैलेंस फैक्टर 0 1 1 2 3 4, इट विल बी -2, अरे -2 0 1 2 3 -2 1 2, ये हुआ हमारे पास 1 2 2 -1 1 0 -1 0। कहाँ अनबैलेंस हो रहा है? 20 पे, नियरेस्ट 20 पे, फिर 13 पे। तो नियरेस्ट इज ऑन 20, रिलेशन फाइंड आउट करो 25 से, राइट के लेफ्ट में। वेरी गुड। तो यहाँ पे होगा आर एल रोटेशन, ठीक है। ये भी मैंने क्वेश्चन एक मैंने जो आपको स्पेशल केस बताया था उसमें मैंने यहाँ पे लिया था चाइल्ड को इधर, और अगर यहाँ आता है तो भी कोई इश्यू नहीं है। जब इसको आप रोटेट करोगे तो पहले तो इसको हम करेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे आर एल रोटेशन, पहले करेंगे इसको राइट रोटेट, 25 विल कम, 24 विल कम हियर, 30 लेफ्ट में, 36 लेफ्ट में, 25 कहाँ जाएगा? ये 30 के लेफ्ट में आ जाएगा, लाइक दिस। अब करेंगे सेकंड रोटेशन इस तरीके से, फोकस यहीं रहना है। यहाँ पे बैलेंस कर रहे हो, ऐसा नहीं पूरा ट्री रोटेट कर दो। जिस पोर्शन को हम बैलेंस कर रहे हैं ना, जिस नोड पे, रोटेशन उसी नोड के अराउंड होगा। अब इसको रोटेट करेंगे केवल, तो 24 रूट हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम क्या करें, पूरे ट्री को ही रोटेट कर दें, ऐसे नहीं करना है। ये कुछ पॉइंट ध्यान रखना। द पॉइंट्स आर कि कहाँ अनबैलेंस हो रहा है तो नियरेस्ट वाले को बैलेंस करो, और रोटेशन भी नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग अप्लाई करो। गॉट इट?